Hello friends, welcome to Binocular. Today we will study about human ear. So let's get started. Human ear is a statoacoustic organ, which means it performs two functions. First is of hearing and second is of balancing. तो ह्यूमन ईयर एक स्टेटोअकोस्टिक ऑर्गन है जो कि सुनने का और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है. It is divided into three parts: external ear, middle ear and internal ear. ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है: external ear, middle ear and internal ear. Now we will see each part in detail. The first is external ear. External ear has various parts that includes ear pinna, external auditory meatus or ear canal, helix, एंटीहेलिक्स, कोंका, ऑडिटरी बल्बा. तो एक्सटर्नल ईयर के अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें ईयर पिन्ना, ईयर कैनल, हेलिक्स, एंटीहेलिक्स, कोंका, ऑडिटरी बल्बा. ईयर पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन विच प्रोड्यूस साउंड. तो ईयर पिन्ना वाइब्रेशंस कलेक्ट करता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है. ईयर कैनाल leads inward and extend to tympanic membrane और eardrum. ईयर कैनाल tympanic membrane और eardrum तक extended होती है जो कि 24 mm long canal होती है. In this canal, minute hair and wax secreting ceruminous gland is present. तो इस कैनल में small hair और wax secreting ceruminous gland present होती है. These glands secrete cerumen और ear wax. ये ceruminous gland ear wax secrete करती है जो कि एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबियल होती है. Now comes the middle ear. Middle ear contains eardrum and ear bones. तो middle ear eardrum और ear bones से बना होता है. Eardrum is composed of connective tissues which made up of skin on outside and covered with mucous membrane on inner surface. तो ईयर ड्रम कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है जो कि आउटसाइड से स्किन का और इनसाइड से म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है. ईएसजीएन ट्यूब arises from middle ear and opens into pharynx. This tube help in equalizing or maintaining the pressure on either side of eardrum. Means this protect the eardrum from rupture. तो एक ESGN ट्यूब अराइज होती है मिडल ईयर से जो कि फेरिंग्स में ओपन होती है और ये ईयर ड्रम के दोनों तरफ प्रेशर मेंटेन करती है जिससे कि वो रप्चर ना हो. मिडल ईयर इज प्रेजेंट इन कैविटी ऑफ टिम्पनिंग बोन. इन मिडल ईयर 3 bones are present: malleus, incus and stapes, which are present in a chain like manner. तो मिडल ईयर में 3 बोन्स प्रेजेंट होती है: मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, जो कि चेन लाइक मैनर में प्रेजेंट होती है. नाउ कम्स द इनर ईयर. इट कंसिस्ट ऑफ बोनी लेब्रियंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ. बोनी लेब्रियंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल filled with perilymph. Inside the bony labyrinth, membranous labyrinth present filled with endolymph. And the coiled portion of membranous labyrinth is called cochlea. तो इनर ईयर बोनी लेब्रियंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ से बना होता है. बोनी लेब्रियंथ एक सीरीज ऑफ चैनल है जिसमें पेरिलिम्फ भरा है और बोनी लेब्रियंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ प्रेजेंट है जिसके अंदर एंडोलिम्फ भरा है और इसका कोल्ड पोर्शन कोक्लिया कहलाता है. अबव द कोक्लिया वेस्टिबुलर apparatus present which is divided into two parts: semicircular canal and otolith organ which are utricle and saccule. कोक्लिया के ऊपर वेस्टिबुलर apparatus प्रेजेंट होता है जो 2 पार्ट से बना होता है: सेमीसर्कुलर कैनाल एंड otolith organ. Now let's see these structures in detail. 3 semicircular canals present in different plane at right angle to each other and suspended into perilymph of cochlea.
3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि राइट एंगल पर प्रेजेंट होती है एक दूसरे के. बेसल पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल इज स्वोलन कॉल्ड एम्पुला. और इनका बेसल पार्ट स्वोलन होता है जिसे एम्पुला बोलते हैं. इन विच सेंसरी रिज प्रेजेंट कॉल्ड क्रिस्टी. जिनमें सेंसरी रिज प्रेजेंट होती है जिसे क्रिस्टी बोलते हैं. विच मेंटेन्स डायनामिक बैलेंस, जो कि बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करने में काम आती है. Utricule and saccule are vestibular structures present at the base of semicircular canals, and below which cochlea is present. At the base of cochlea, scala vestibuli end in oval window, and scala tympani ends in round window which opens into middle ear. कोक्लिया का स्केला वेस्टिबुलाई ओवल विंडो में ओपन होता है एंड स्केला टिम्फनाई राउंड विंडो में ओपन होता है मिडल ईयर में. नाउ लेट्स सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ कोक्लिया. सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोक्लिया. इट कंटेन्स रेसिनर्स एंड बेसिलर मेम्ब्रेन. These membrane divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth as scala vestibuli above and scala tympani lower side. Fluid filled in the cochlea is endolymph and the part is called scala media. तो कोक्लिया में बेसिकली दो मेम्ब्रेन होती है, ऊपर रिसिनर मेम्ब्रेन एंड नीचे बेसिलर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस लेम्प्रियंथ जिसमें कि एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है. ऊपर वाले पार्ट को स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं एंड नीचे वाले पार्ट को स्केला टिम्फनाई बोलते हैं, और जिसमें एंडोलिम्फ भरा होता है उसको स्केला मीडिया बोलते हैं. Organ of Corti is a special sensitive organ present on the basilar membrane which contain hair cells act as a auditory receptor. तो बेसिलर मेम्ब्रेन पर एक सेंसिटिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जिस पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो एक ऑडिटरी रिसेप्टर है. सो नाउ वी विल सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टियाई. So this is the detailed structure of organ of Corti. Hair cells present in row. Many conical stereocilia present on each hair cells. These stereocilia covered with an elastic membrane called tectoral membrane. तो organ of Corti पे hair cells present होती हैं और इन hair cells पे stereocilia present होते हैं और ये हेयर सेल्स टेक्टोरल मेम्ब्रेन से प्रेजेंट होते हैं. एट द बेसल पार्ट हेयर सेल्स कनेक्ट विथ एफरेंट नर्व फाइबर ऑफ ऑडिटरी नर्व, और ये हेयर सेल्स बेसल पार्ट पे नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं. सम सपोर्टिव सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गन ऑफ कोर्टियाई. दीज आर सेल्स ऑफ डीटर, पिलर और रॉड सेल्स, हैंसन सेल्स. ऑर्गन ऑफ कोर्टियाई में कुछ सपोर्टिव सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल्स ऑफ डीटर, सेल्स ऑफ बोचर, पिलर सेल्स और हैंसन सेल्स कहलाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, देयर पार्ट्स, सेमीसर्कुलर कैनाल्स, internal structure of cochlea, structure of organ of Corti, and their arrangement. Thank you for watching.